लॉकडाउन के कारण अपने कार्य से बैठे डेली मजदूर की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। मालदा के हरिश्चंद्रपुर इलाके के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले हरिजन मोची अपनी बदहाली का रोना रो रहे हैं। लगभग 50 से 55 परिवार आज भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। इन लोगों की माने तो सरकार की दी गई राशन से कभी आधे पेट से खाकर तो कभी भूखे रहकर जीवन यापन किसी तरह कर ले रहे हैं, किंतु जिन घरों में बीमारियां पैर पसार रही हैं उनके लिए तो जीना दुर्लभ हो गया है। सरकारी राशन के अलावा अब तक किसी तरह की कोई राहत उन्हें नहीं मिली। आइए सुनते हैं उन्हीं लोगों की जुबानी उनके दर्द भरी कहानी। পরিবার এই লকডাউনে কি করে চলছেন? কিরকম চলেছেন? জুতা সিলাবিছিলাম, এখনকার জুতো নিয়ে সিলাবি দিয়েছে, এই কামাই করে খাইছিল, এখনকার রোজগার নিয়ে চলিছে, এখনকার 2 টাকা আনিছে স্বামী, তো খাইছি, এক বেলা খাইছি, দুবেলা ভুখা রয়েছি, কি করব? এ 2টা ছেলে আছে। বলছি আপনি সমস্যায় রয়েছেন? অনেক অসুবিধায় পড়েছি স্যার, কোনো কাজ কাম নাই। আমরা কামারে কাজ করি, কিন্তু কামারে মনে করি যেখানে আমরা মাল টাল বিক্রি করে দিই ওখানে সব দোকান বন্ধ, হাটে ঘাটেও বন্ধ, যা হচ্ছে গ্রামে 2-1টা বিক্রি করে আমরা খাই, কোনো রকম সংসার মেনে চলে। এত অসুবিধায় পড়েছি স্যার, তো কোনো কথাই বলছি না, আর কি বলবো। আর আপনার স্ত্রী কি সমস্যা হচ্ছে? আমার প্যারালাইসিস অসুখ, আর 3 বছর থেকে ভোগাভোগ করছি। বলছি নাম্বারকে, ও বলছে যে ওখানে যাও, ওখানে যাচ্ছি, কোনো অসুবিধায় পড়ছি, কোনো গ্যারান্টি করছে না। কি করব? লক্ষ্মী যেটা ঘর দিবে আমাদেরকে, ঘর দিবে না, বলছে আমরা কাছে কাছে আমরা কি আছে আমাদের ইট করে করে দেখো, এইটুকু বাচ্চাকে রেখে রেখে মাঠে যাচ্ছি, মাঠে বন্ধ হয়ে গেছে, আমার স্বামী পিছনে পড়ে আছে, 3টা মেয়ে আছে, একটা ছেলে। কি হয়েছে আপনার স্বামী? আমার স্বামী অসুখ আছে। কিসের অসুখ? অসুখ, জ্বর, সর্দি, কাশি, কত টাকার ওষুধ নিয়ে আসলাম। আমি একটা মেয়ে মানুষ হয়ে কি সঙ্গে চলাতে পারবো? একটা পলিথিন দিবে না আমাদেরকে, একটা ঘর দিবে না, লক্ষ্মী যেটা ঘর দিবে, তো পার্টি হিসাবে বোঝে না, পার্টি করছে, ও পার্টি করছে, ও পার্টি করছে, ও পার্টি দিবে বলে নাম্বার পড়তে আমাদের কিছু নাই ভাই। এখন কি করেন আপনি? এখন কি করছি, বস রাখছি বাড়িটা, কি করে আমি এখন তো সব মিসের জন্য ভাই ভাইনাসের জন্য সব বন্ধ, খাওয়া খাওয়া থাকতে পারছি না। কাঁদছেন কেন আপনি? সরকারি কোনো সুযোগ সুবিধা পেয়েছেন আপনি? সুযোগ সুবিধা পেয়েছেন সরকারি? চাল পেয়েছেন রেশনের? রেশন পেয়েছেন? খাবার খেয়েছেন? এখন খাবার কি খেলেন আপনি? এখন কি খেলো? ছাতু, ছাতু কি চাইছেন আপনারা? স্বাধীন চাই, ভালো চাই। আপনার নাম? আকালের বিলাস। আপনার বাড়ি? এটা বাড়ি গ্রামের বাড়ি। আমি বলিগুলো কথা চলে আসি, খাবার না, সরকার কিছু সুযোগ পাইনি। কিভাবে চলছে আপনার পরিবার? আমার পরিবার কাম টাম দুটো কাজটা খাতে হলো, খাবো, কাজ বন্ধ হয়ে গেছে, আর কথা চলে আসো খাবো। এই যে লকডাউনের জন্য যাওয়া যাচ্ছে না, কোনো কাজ কাজও করাচ্ছে না, করছে না, সেই আমি আজকে গ্রামেই বসে আছি, গ্রামে কাজ করছি, কাজ কাম চলছে না, কোনো ইনকাম পাতি নাই, ছেলে মেয়েকে কী করে খাওয়াবো তার কোনো সমস্যা নাই, সরকার থেকে কিছু পাওয়া যাচ্ছে না আমাদের, কী করবো? বলছি একটা গ্রামে বসে কিছু ইনকাম হয় আপনার? এ হয়ে যায় কোনো দিন 20 টাকা 25 টাকা এমনি হয়ে যায়। মুচিপাড়া আছে, ওরা সরাসরি অভিযোগ তুলছে যে ওরা নাকি কিছুই সহযোগিতা পাচ্ছে না, কি বলবেন আপনি? আর কিছু সহযোগিতা পাইটা এটা কথা নাই, আমি যেটা সাহায্য করে দিয়েছি সবাইকে, মানে 70 জনের দেওয়ার কথা আছে, আমি 120 জনকে ম্যানেজ করে দিয়েছি। আমার যতদূর
সামর্থ্য ছিল ততটাই আমি করেছি। এর থেকে বেশি আমি তো সবাইকে করতে পারবো না। যাদের একবারে কিছুই ছিল না, মনে হচ্ছে না খেয়ে থাকছিল, তাদেরকেই দেওয়া হয়েছে। এবার যাদের দিন খাচ্ছে তাদেরকেই দেওয়া হয়েছে। এবার লকডাউনের জন্য যে সবার ইয়ে হয়েছে, ওই জন্য ওদেরকেই দেওয়া হয়েছে। আচ্ছা, আপনাদের যে বুথটা রয়েছে সেই বুথটা তো পিছিয়ে পড়া এলাকা, এটা আপনি জানেন তো? হ্যাঁ, পিছিয়ে পড়াই। ওই পঞ্চায়েত প্রতিপক্ষকে জানাচ্ছি যে আমাদের এই হরিজন পাড়ার সদস্যদেরকে একটু কিছু সাহায্য করতে। আচ্ছা, আপনার নাম? কবিতা দাস। আপনি কোন বুথের মেম্বার? আমি টিএমসি বুথের মেম্বার দিয়েছি। तबलीगी जमात इन दिनों तनाज़ों के घेरे में है। निज़ामुद्दीन तबलीगी जमात मरकज़ से 6 लोग 19 मार्च को वापस आए थे। इंतज़ामिया ने इन लोगों को कल्ला के करीब क्वारंटाइन किया था। जांच निगेटिव आने के बाद उन्हें घर वापस भेज दिया गया है। इस खबर से न सिर्फ जमात से जुड़े लोगों ने बल्कि पूरे शहर ने राहत की सांस ली है। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद सहाबुद्दीन। कहाँ रहते हो आप लोग? बलतोड़िया में रहते हैं। अच्छा, आप लोग जमात में गए थे? जी। अच्छा, उसके बाद जब आप लोग जमात में गए थे, फिर जब आप लोग जमात में आए, उसके बाद फिर क्या हुआ? जब हम जमात से आए हैं तो हमने सोचा कि सरकार को इत्तला कर दिया जाए कि हम बाहर से आए हुए हैं, जमात से आए हुए हैं। तो हमने सरकार को इत्तला किया, तो सरकार ने फिर कहा हमें कि ठीक है, आप फिट हो, आप घर पे ही रहो आराम से। उसके बाद हम लोग 14 दिन घर पे ही रहे। उसके बाद फिर अचानक फिर आप लोग को बुलाया गया? हाँ, फिर बुलाया गया। अच्छा। फिर रात में हमें बुला करके फिर क्वारंटाइन में फिर रखा गया? कल्ला में रखा गया है। अच्छा, 14 दिन के लिए। वहाँ पे कितने लोग आप लोग थे? हम लोग 9 साथी थे। अच्छा, 9 साथी थे। हाँ। अच्छा, आप लोगों को जब रखा गया तो फिर आप लोगों को जांच भी हुआ था? जी, हमारा 4 जांच हुआ था। अच्छा, तो जांच में क्या रिपोर्ट आया? जांच में नेगेटिव रिपोर्ट आया था। अच्छा। डॉक्टर ने कहा था कि आप लोग महफूज है। अच्छा। हाँ, तो हमने कहा था तो सर जब महफूज है तो हमें छोड़ दिया जाए। तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, 14 दिन का जो रूल है वो 14 दिन आपको यहाँ पे रहना होगा। अच्छा, आपका जांच का रिपोर्ट नेगेटिव आया, आप क्वारंटाइन में भी थे। जांच का रिपोर्ट जब नेगेटिव आया तो वो लोग कुछ प्रमाण उन्होंने दिया आप लोग को? नहीं, अभी तक नहीं मिला हमें कोई प्रमाण। सरकार से आप क्या कहना चाहोगे? हमने डॉक्टर से इससे इजाज़त ही मांगी कि हमारा जो रिपोर्ट नेगेटिव आया है तो सर वो तो हमें कुछ प्रूफ तो मिला है नहीं। तो डॉक्टर ने कहा कि वो जो सर्टिफिकेट जो है नेगेटिव का वो ऑफिस में जाके जमा हो गया है, आप ऑफिस से इत्तला करें। तो और फिर उसके बाद जब हम लोग वहाँ क्वारंटाइन से जब वापस घर आने लगे तब फिर हमने वहाँ से जो वहाँ का जो इंचार्ज था, इंस्पेक्टर था, तो हमने उससे कहा कि सर हमें तो कोई प्रूफ नहीं मिला है अभी तक कि हमारा जो नेगेटिव आया है। तो बोला नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, आप रास्ता में चले जाओ, कोई ऐसा बात होगा तो आप हमें फ़ोन कीजिए। आप लोग का जांच कहाँ पे हुआ था? हम लोग कल्ला सेंट्रल में हुआ था। चलो, आप आ भी गए हो, आप क्वारंटाइन में भी रहे, आपका रिपोर्ट नेगेटिव भी था। अब लास्ट में ये बता दो कि कुछ लोग देख रहे हैं कि एक र्यूमर उड़ा रहे हैं, उसके लिए तुम क्या करोगे जो लोग र्यूमर उड़ा रहे हैं? नहीं नहीं, हम लोग तो 14 दिन जो क्वारंटाइन में थे, लोग र्यूमर जो उड़ा रहे कि जमात वाले सब गए हैं, वो पॉजिटिव हो गए हैं, वो कोरोना फैला रहे। तो हम लोग कोरोना नहीं फैला रहे, कोरोना से लड़ना है, बल्कि कोरोना फैलाना नहीं है। और हम लोग सब नेगेटिव है और हम लोग इसका सब साथ दे। जो लोग ऐसा कर रहे हैं कि जमात वाले कोरोना फैला रहे, वो गलत है, उसका गलत सोच है, बल्कि वो इस सोच से दूर रहे और हमारा साथ दे। और हम लोग जब से जमात से वापस आए हैं, क्वारंटाइन से वापस है, तब से हम लोग घर में ही भी क्वारंटाइन किए हुए हैं लॉकडाउन की वजह से। सरकार जो लॉकडाउन का नियम जो लागू किया है वो हमारे लिए बल्कि हमारे देश के लिए बेहतर किया है। हम और हमारे तमाम देशवासी इस आज्ञा का पालन करें और हम सब मिल करके सरकार का हौसला बढ़ाएं और इससे आपस में भाईचारगी बना के रखें। और कोरोना से हमें हारना नहीं बल्कि कोरोना से लड़ना है। नए डीएम ने आज एक प्रशासनिक बैठक की और विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। আমি নতুন জয়েন করেছি। আপনারা জানেন যে এখন কোভিড-19 সবাই কিভাবে আমাদের কাজ করতে হবে, সব একই করতে হবে। জাস্ট ইটস আ ওয়ান। সবাইকে আমি চাইবো এই জেলার সব জেলাবাসী যারা আছেন
তারা সবাই সুরক্ষিত থাকুন, সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, যাতে কোনো এটা মিক্স আপ না হয়ে যায়, স্প্রেড নতুন করে না স্প্রেড করে যায়। সবাই যে যার হেলথ কেয়ারটা প্রপারলি নেবেন এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যে কাজগুলো আগামী দিনে করতে যাচ্ছে সেগুলোতে তাদের কোঅপারেশন চাইছি। যেভাবে বলবে গভর্নমেন্ট, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যেভাবে বলবেন তাতে কোঅপারেট করতে বলছি, যাতে আমরা সবাই মিলে এই রোগটাকে আমরা হারাতে পারি এবং আবার একটা ভালো দিন আমরা সবার কাছে নিয়ে আসতে পারি। এটি আমার বক্তব্য। बड़ाका चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से आज से पूरे बड़ाकर में सैनिटाइजेशन का काम शुरू किया गया। कुमार अग्रवाल का समाज को देखते हुए, उनका हार्ड एफर्ट और सिंसियर एफर्ट को देखते हुए ये काज कंप्लीट कराया जा रहा है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? अंकित कुमार अग्रवाल। बराकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से सैनिटाइजिंग का कार्य आज से शुरुआत किया गया है। संतोष ह्यूमन राइट्स एंड जन कल्याण फाउंडेशन की ओर से 1700 परिवार को राशन किट बांटा गया। नेशनल चेयरमैन संतोष पांडे, अभिषेक राय, ओमकार पांडे, नवीन सिंह ने ज़रूरतमंदों को इस लॉकडाउन के समय राहत पहुंचाने का प्रयास किया। जी नमस्कार, आचार्य संतोष कुमार पांडे, संतोष ह्यूमन राइट एंड जन कल्याण फाउंडेशन से राष्ट्रीय चेयरमैन। आज इस लॉकडाउन के समय में, आज ये महामारी, वैश्विक महामारी के समय में हमने जो भी पब्लिक में और जनता की सेवा किया, निस्वार्थ भावना से किया। और हमारे साथ पश्चिम बंगाल के युवा चेयरमैन अभिषेक राय, पश्चिम बंगाल के राज्य सचिव ओमकार पांडे, वाइस चेयरमैन नवीन सिंह, ये लोग का बहुत अहम योगदान रहा। मैं सभी को और हमारे जितने भी संतोष ह्यूमन राइट एंड जन कल्याण फाउंडेशन के जितने भी हमारे पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण हैं, मैं सभी को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं एवं बंगाल सरकार और केंद्र सरकार दोनों का बात को मानते हुए हमारे जनता से अपील करता हूं कि चलें, लॉकडाउन का पालन करें। अब तक कितने लोगों तक आप लोग राशन किट बांट चुके हैं? जी, हमने 1700 घरों में राशन जा के पहुँचाए हैं, जिसमें से हम कल्याणपुरी क्षेत्र में, बड़ाकर क्षेत्र में मुख्य रहा है। कोरोना एक लाइलाज बीमारी है। दुनिया भर के लाखों लोग इसकी खुराक बन चुके हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ लोगों में बेदारी फैलाने के लिए रानीगंज स्कूल पाड़ा के एक टीचर मैदान में उतरे। अमिताभ दत्ता ने लोगों की गलतफहमी दूर करने का बेड़ा उठाया है। उन्होंने बताया कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एहतियात की ज़रूरत है। समाजी दूरी बेहद ज़रूरी है, बगैर किसी ज़रूरत के बाहर ना निकलें। রানীগঞ্জে থাকি আমি অমিতাভ দত্ত। আজকের যে পরিস্থিতিটা করোনার কারণে আজকে যে সমস্যাটা উদ্ভূত হয়েছে, এটা আমাদের সবাইকারই সিরিয়াসের মধ্যে রাখা উচিত, সিরিয়াসলি নেওয়া উচিত। কারণ হচ্ছে এই ভাইরাসের একটা বিশেষত্ব আছে, এ চরিত্র বদল করে, ডেঞ্জারাস প্রাণী দেহ থেকে জীব দেহের ভিতরে ট্রান্সফর্ম করেছে। এর পরিস্থিতিতে আমাদের যে ভাইরাস বিজ্ঞানী যারা কালচার করেন তারা জানাচ্ছেন আমাদের রিপোর্টে, তাতে আমরা ভয়ার্ত, আমাদেরকে ভয় পাওয়া উচিতও, কারণ এখনও পর্যন্ত এর কোনো মেডিসিন বা ওষুধ বেরোয়নি। এই পরিস্থিতিতে আমাদের মনে রাখা উচিত মানুষের যে পুলিশ প্রশাসন এখনও পর্যন্ত কাজ করছেন, এখনও পর্যন্ত হসপিটালের নার্স, আয়া, ডাক্তার তারা রাত জেগে কাজ করছেন, রোগীকে স্পর্শ করছেন, ছুঁচ্ছেন। সুইপাররা এখনও পর্যন্ত রাস্তা পরিষ্কার করছেন, জলের কলের কর্মচারীরা জল সাপ্লাই করছেন, লাইটের দপ্তরের কর্মচারীরা এখনও পর্যন্ত জাগিয়ে আমরা বেঁচে আছি ওদের জন্য। এই পরিস্থিতিতে আমাদেরকে স্বাস্থ্য সচেতনতার থেকে আমাদের মনে রাখা উচিত যে এদের বিরুদ্ধে কোনোরকমভাবে কোনোরকম উল্টোপাল্টা গুজব ছড়িয়ে একটা অ্যাটমসফিয়ারকে নষ্ট করে ফেলা, এটাও আমাদের কোনো উচিত নয়। এই আমাদের এখানে তো ওয়ার্ড ভিত্তিক কর্পোরেশনের এলাকা, তো এই কর্পোরেশনের এলাকায় ওয়ার্ড ভিত্তিক যে স্বাস্থ্য দপ্তর আছে, সেই স্বাস্থ্য দপ্তরের উচিত কাজ হবে যে সাসপেক্টেড কোনো মানুষদেরকে একটু চেক আপের বন্দোবস্ত যদি করেন। এবং আরেকটা বিষয় আমাদেরকে লক্ষ্য রাখা উচিত, সেটা বৃহত্তর স্টেজে করা উচিত, সেটা হচ্ছে গিয়ে
যে দিন আনে দিন খায় মানুষ, তাদের একটা খাওয়া দাওয়া, অন্ততপক্ষে একটা হোম সার্ভিসের হোটেলকে চালু রাখা, এইগুলোর দিকে একটু নজর দিলেই আমরা রানীগঞ্জের মানুষ অন্ততপক্ষে খুব সেফটি জায়গাতেই আছি। এবং এর জন্য প্রশাসন, স্বাস্থ্য দপ্তর এবং কর্পোরেশন এবং সকলকেই আমাদের অভিনন্দন জানানো উচিত, তারা যে এখনও পর্যন্ত আমাদেরকে সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছেন। আপনার পরিচয়? আমার নাম হচ্ছে অমিতাভ দত্ত, রানীগঞ্জে থাকি, সাথে যুক্ত। হ্যাঁ, माही मैरिज हॉल इलाके में अपनी तर्ज का वाहिद मैरिज कम कॉन्फ्रेंस हॉल, खूबसूरत लॉन एरिया, पार्किंग एरिया, एसी रूम्स, मल्टीपर्पज हॉल, 24 आवर पावर बैकअप, 24 आवर ड्रिंकिंग वाटर, चेयर टेबल की सहूलियात मौजूद है। आज ही बुक करें। हमारा पता है आजाद नगर, इस्माइल, आसनसोल। कांटेक्ट करें 9334098841 8768822128। आपके जीवन के खास पलों को और भी खास बनाएं। SAR दी वेडिंग प्लानर। वेडिंग सेरेमनी हो या बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट सेरेमनी हो या आपकी खुशी का कोई भी पल, इन पलों को खूबसूरत तरीके से सजाने की जिम्मेदारी हमारी। मेक योर मेमोरीज मेमोरेबल जस्ट लाइक सेलिब्रिटी स्टाइल। Contact SAR दी वेडिंग प्लानर। मोबाइल नंबर 9851030086, 9641790842, 8942866084 and 9333131466. So don't waste time. Hurry up. Book now. पश्चिम बर्धमान जिला कांग्रेस के सदर तरुण राय ने रानीगंज के एक निजी अस्पताल में जेर इलाज जमुड़िया थाना इंचार्ज सुब्रतो घोष से मुलाकात की। उन्होंने डीएम को भी अर्जदाद सौंपी। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি তার নির্দেশে পশ্চিম বর্ধমান জেলা কংগ্রেস আজ ডিএমের কাছে ডেপুটেশন। আমরা কতগুলো দাবি রেখেছি যে লকডাউন ঘোষণা হবার পরে যে রেশনিং ব্যবস্থা গভর্নমেন্ট যেটা করেছে তাতে সেই ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে হবে। তার কারণ এই ব্যবস্থায় ঠিক মতন মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছে না সেই সিস্টেমটাকে, এবং প্রত্যেক সপ্তাহে যাতে পরিবারের পর্যাপ্ত ধরনের রেশনিং তাদের কাছে পৌঁছায় সেই পৌঁছানোর দাবি জানিয়েছি। बांग्ला गौरव ममता के बैनर तले आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक 2 रेलपार इलाके में मंत्री मुलाय घटक के निर्देश पर मास्क बांटे गए। शहनवाज खान उर्फ रॉकी, फलसफी आलिया, मोहम्मद आकिब, मास्टर अख्तर मुख्य रूप से उपस्थित थे। मैं आप तमाम लोगों से ये अपील कर रहा हूं, आप लोग अपने घर के अंदर रहें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अपील पर, उनकी सामाजिक खिदमत को देखते हुए हमारे आसनसोल के वजीर कानून, वजीर मेहनत मजदूर जनाब मुलाय घटक साहब की तरफ से आप तमाम लोगों को ये इत्तला दिया जाता है, आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लॉकडाउन का पालन करके अपने घरों के अंदर रहें। घर से बाहर निकलते वक्त आप लोग खासा ध्यान दें। घर से बाहर निकलते वक्त आप लोग मास्क का इस्तेमाल करें, मास्क लगाकर निकलें। ऐसे वो लोग जो मास्क लगाकर नहीं निकले हैं उनके लिए কংগ্রেসবাদী মার্ক্সবাদী সিপিআইএমের পক্ষ থেকে আমরা গোটা রাজ্য জুড়ে যে করোনা সংক্রান্ত বিষয়ে যে অভিযোগগুলো আমরা বারবার করে এসেছি সরকারের কাছে, এই করোনার মোকাবিলা করতে গেলে যেগুলো প্রাথমিকভাবে দরকার, যে টেস্টের সংখ্যা, র্যাপিড টেস্টের সংখ্যা, এবং করোনা মোকাবিলায় যে সমস্ত স্বাস্থ্যকর্মী, ডাক্তাররা, নার্সরা এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা যুক্ত আছেন তাদের সঠিকভাবে পিপিই দেওয়ার কথা আমরা বারবার বলেছি। এইগুলো না মানার ফলে ইতিমধ্যে রাজ্যের কয়েকটি হসপিটাল বন্ধ করতে হয়েছে, অসংখ্য স্বাস্থ্যকর্মীকে কোয়ারেন্টাইনে পাঠাতে হয়েছে। রেশনে যে চাল কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের দেওয়ার কথা, সেই চাল এবং খাদ্যশস্য সঠিক পরিমাণে ঘটা আছে হাসপাতাল দোকান থেকে সরবরাহ করা হচ্ছে না। যাদের রেশন কার্ড নেই
তাদের কুপন বিলির মাধ্যমে হচ্ছে রেশন ব্যবস্থায় আনার কথা বলা হয়েছিল, কিন্তু আমরা যেটা দেখছি বাস্তবে এই কুপন নিয়ে হচ্ছে যে সরকারি দলে কাউন্সিলর এমএলএ যারা আছেন তারা কুক্ষিগত করছে, গরিব মানুষ বঞ্চিত হচ্ছেন। অসংখ্য অসংগঠিত শ্রমিক যারা এই সময় কাজ হারিয়েছেন বা কাজে যেতে পারছেন না, তাদের এই সময়ে সংসার নির্বাহ করা একটা যন্ত্রণাদায়ক হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে আমরা দাবি করেছি প্রত্যেকটি হচ্ছে অসংগঠিত শ্রমিকের যে অ্যাকাউন্ট, যাদের হচ্ছে আয়কর দেয় না, এই রকম মানুষজনের কাছে হচ্ছে যে 7,500 টাকা করে তাদের অ্যাকাউন্টে পাঠাবার কথা বলেছি। যে সমস্ত পরিযায়ী শ্রমিক হচ্ছে যে বিভিন্ন রাজ্যে আটকে আছে তাদের অবিলম্বে হচ্ছে যে খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হবে, তাদের নিয়ে আসতে হবে। এই ব্যবস্থাগুলোর বিরুদ্ধে হচ্ছে যে আমরা বারবার হচ্ছে সরকারকে দাবি জানাওয়া সত্ত্বেও সরকার কোনো কর্ণপাত করেনি। এর ফলে হচ্ছে যে আমাদের রাজ্যে একটা বড় অংশ কয়েকটি জেলা করোনা হচ্ছে যে একদম হটস্পট হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে এবং কতগুলো জায়গা ক্ষেত্রে হচ্ছে যে বিক্ষিপ্তভাবে করোনা সংক্রমণ চলছে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা বারবার অনুরোধ করছি র্যাপিড টেস্টের মাধ্যমে এই করোনার হচ্ছে বিরুদ্ধে লড়তে গেলে একমাত্র টেস্ট 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 এছাড়া কোনো বিকল্প নেই এবং হচ্ছে ডিস্টেন্স মেনটেন করা এবং গরিব মানুষের পাশে থাকা, এই দাবি নিয়ে আমরা হচ্ছে যে প্রতিবাদ করছি। আগামী দিনে সরকারকে আমরা বাধ্য করব এই দাবিগুলোর সঙ্গে সহমত হয়ে রাজ্যের গরিব মানুষ, খেটে খাওয়া মানুষ তাদের সাথে পাশে দাঁড়াবার জন্য। परिस्थिति में गरीबों के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है और कितने दिनों से कितने लोगों को खिलाया जा रहा है? लॉकडाउन के दौरान स्टेशन परिसर के इर्द गिर्द जो भी व्यक्ति रहते हैं, इन गरीब तबके मार्च 26 से हम लोग मेरे पीसीएससी साहब, मिश्रा साहब, मेरे मंडल सुरक्षा आयुक्त मिश्रा साहब और डीआरएम साहब के दिशा निर्देशन पे हम लोगों ने शुरू किया। शुरुआती दौर में करीब 200 के लोग थे, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे दिन भर सेकेंड फेज 2 लॉकडाउन में अभी प्राय रोज़ 340-350 लोगों को हम लोग खाना खिलाते हैं दोपहर में। इसमें बाबा बासुकीनाथ सेवा समिति के परिसर में यह खाना बनता है। उन लोगों का भी भूमिका बहुत सराहनीय है, वो लोग मिलजुल के हम लोग बनाते हैं। उसके बाद जितने भी गरीब तबके के लोग हैं, मेरा आरपीएफ वेस्ट पोस्ट के सदस्यगण मिलकर हम लोग खिलाते हैं और जब तक लॉकडाउन रहता है तब तक हम लोग खिलाते रहेंगे। इसमें हमारे जो वरिष्ठ सुरक्षा आयुक्त साहब हैं वो भी आएँ, वो भी आके देखे। हम लोग इन लोगों को पूरा खिलाने से पूर्व सैनिटाइज करते हैं, इनके हाथ को धुलवाते हैं, इनको ब्रीफिंग करते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को हम लोग मेंटेन रखते हुए हम लोग खाना खिलाते हैं। यह केवल आसनसोल में ही नहीं हो रहा है, मेरे आसनसोल मंडल में जितने भी पोस्ट है, चाहे वो दुर्गापुर हो, अंडाल हो, रानीगंज हो, जामताड़ा, जसीडी, मधुपुर, सब जगह खिलाया जा रहा है। खिलाने के साथ साथ हम लोग गरीबों में बीच बीच में फूड पैकेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें आसनसोल के से भी जिनको पता चलता है वो लोग आके ले जाते हैं। फ़िलहाल हम लोग रोज़ यहाँ 350 के आसपास लोगों को खिला रहे हैं और इनको बताते हैं कि यह जो संक्रमण की बीमारी है यह मनुष्य से मनुष्य में फैलता है, यह किसी जाति विशेष पे निर्भर नहीं है। और ये भी उन लोगों को संदेश देते हैं कि आप लोग किसी अफवाहों में मत जाइए, अपने आप को सुरक्षित। की ओर से आरपीएफ या केएलसी कैसे हो रहा है? जो लोगों के गरीब लोग हैं उनकी सहायता के लिए खाना पीना क्या व्यवस्था की जा रही है और कितने दिन से चल रहा है? यहाँ पर आरपीएफ वो जब से लॉकडाउन पिछले 1 महीने से ये व्यवस्था चल रही है। इसके अलावा दूसरे समूह भी जो रेल के कर्मचारी और बाकी स्टाफ है वो भी इसको पैरेलल में और कर रहे हैं कि कोई आसपास के इलाके में भी ना छूटे, और जिसमें कल्याण निरीक्षक और बाकी लोग जो हैं वो मुख्य भूमिका में हैं। और राशन की वितरण की व्यवस्था भी जारी है। कॉलोनी के अलावा दूर दराज के इलाके में जो भी ज़रूरतमंद आदमी हैं और वो उसकी भी सेवा की जा रही है। पर डे आप लोग रेडी फूड कितना लोगों को खिला रहे हैं? यहाँ पे किस किस इलाके में चलाया जा रहा है ये अभियान? 200 के हिसाब के आसपास एवरेज है, तो एक ग्रुप 200 के हिसाब से करता है, 200 टोटल 500 के आसपास। और किन किन इलाकों को कवर किया जा रहा है?
ऑलमोस्ट सभी इलाकों को 3-4 किलोमीटर के दायरे में सभी इलाकों जहाँ भी सूचना मिलती है या जैसे भी है कि स्टेशन के एरिया के अलावा दूसरे क्षेत्र भी इसके दायरे में। এই দুর্যোগের দিনে এই দুস্থ পরিবারদের আমাদের আজকে আমরা শিব মন্দির পূজা কমিটির পক্ষ থেকে 150 থেকে 200 জনকে আমরা খাবার বিতরণ করলাম। আর আমাদের বলার কমিটির থেকে সকলকে বলছি, সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, বাড়িতে থাকুন আর দূরত্ব বজায় রাখুন। কি ভাত, সবজি, ডাল দিনের চেষ্টা আরও আছে অনেকে। আমরা এর আগে সাবান বিতরণ করেছিলাম 100 জনকে। আর এই যে খাবারটা আমরা গিয়ে আলোচনা করছি, তো আমরা আমাদের উদ্যোগ নিচ্ছি যে আরও কন্টিনিউ চালিয়ে যাবো খাবারটা। তন্ময় ঢাং। आसनसोल जैसे शहर में एक खूबसूरत से आशियाने का ख्वाब कौन नहीं देखता। इस्माइल में 7 डुप्लेक्सेस इमारत खासकर आपकी पसंद का ख्याल रखते हुए तामीर कराई जा रही है, जहां पार्किंग, कुआं, रिजर्वर की सहूलियात मौजूद है। तो आज ही बुकिंग कराएं। हमारा पता है इस्माइल, साउथ रेंज, सोष्टी नगर, नियर ASN प्ले स्कूल, आसनसोल। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। Fashion Plaza, biggest imitation jewelry and fashion makeup shop in Asansol. All Sri Hari products and guaranteed golden jewelry, imitation jewelry, goggles, wristwatches, purses, deos, bangles, bridal jewelry, gents jewelry, cosmetics, hair and parlor accessories मुनासिब कीमतों पर उपलब्ध है। तो देर किस बात की, हमारा पता है फैशन प्लाजा, 3rd फ्लोर, गैलेक्सी मॉल, आसनसोल।